Or once again, a warm welcome to the today's Golden Charcha, our insightful webinar series, which has been organized by EIRC of ICI, which is being held thrice a week. Today marks a special milestone as we have reached the 30th session of this exciting journey, and I'm thrilled to see such enthusiasm among all the professionals who join it on a regular basis. So our topic for today is fast track merger, which is highly engaging as well as highly practical. In the fast-paced business world, speed and efficiency are paramount. This special legal provision allows certain companies to merge with undergoing the lengthy and carefully approval process instead requiring only the regional director's consent. So this is a quicker process of the merger. To help us with the same, we have our distinguished guest today, CS Mohan Ram Goenka ji, who will be guiding us through the fast track merger session and will be enriching us with the vast knowledge. Before we dive it into, we have our special invitee as CS Chandrabanu Sinha ji, who will be giving a special address over the topic or something, whatever he will be willing to. So, handing over to CA Chandrabanu Sinha ji for the address. Thank you, ma'am ji. Thanks to Vishnu ji and AIRC team who give me an opportunity. Today's topic is fast track merger. In today's dynamic business environment, companies are often in search of strategies that allow them to expand, reduce competition, and optimize resources swiftly. One such strategy is merger and amalgamation, a process where two entities join hands to create a stronger, more competitive organization. However, as many of us know, the traditional merger process can be time consuming, involves multiple approvals, and often leads to significant delays. This brings us to the concept we are going to explore today: fast track merger. Introduced under the Companies Act 2013, this provision revolutionized how certain classes of companies, like small companies and holding wholly owned subsidiaries, can merge with much more ease and efficiency. Unlike the conventional merger process that requires approval from the National Company Law Tribunal, fast track merger shifts the approval power to the regional director, thereby cutting down both cost and time. Imagine a scenario: two small but rapidly growing companies operating in the same industry facing stiff competition. Instead of losing out individually, they decide to pool their strengths, resources, and customers with the fast track route. They can achieve this consolidation in a fraction of usual time, enabling them to remain competitive, agile, and future ready. This kind of framework not only supports startups and MSMEs but also fuels innovation and collaboration at a large scale. Thus, fast track merger is not just a compliance provision, it is an opportunity, a tool for growth that allows business to move from survival mode to a leadership position in their industry. To help us understand this mechanism, its benefits, its legal framework, and its practical implications, we have with us today an expert in corporate law and finance, CS Mohan Ram Goenka ji. He has guided numerous organizations in mergers and restructuring and will provide us with a clear and practical insight into how fast track merger can shape the future of business combinations
in India. So, without taking much more of your time, please join me in welcoming CS Monram Goenkaji to a stage to enlighten us on this exciting topic. So, stage handed over to C. Mayank Kumarji. Thank you so much, sir, for your insightful information over the topic. So, as we are already running late today, I will be handing over to ये Mohan Ram Goenka ji. After just a small brief of his profile, I will be reading over to him. Just Yes, Mohan Ram Goenka ji is a practicing company secretary since 3 decades in the name of MR and Associates, which is located in Kolkata. So he is qualified MCOM, FCS, CFA, PGDFM, PGDPC, and insolvency professional. He he has done several assignments which related to merger and all. He is a consultant on corporate law, secretarial services, and legal advisor on company law. So with now I am handing over to CS Mohan Ramonka ji. Thank you, Mangji. Thank you, Bhanuji. And thanks to ARC, Vishnu Tulsianji, for giving me opportunity today to deliberate in regarding to the fast track merger. I will share my screen. Here we will discuss in regarding to the fast track merger. A wide area of knowledge has been opened here. We can see that a lot of opportunity had come here. What are the opportunity that we'll discuss here today? Also, this has been effective from, I think screen is visible. Yes, Can sir. it Yes. is visible? Na? Yeah. So here we will see this has been effective from this amendment came on 4th September. This amendment came on 4th September, but it is effective from 8th September. How? You can see on the screen, this is the e-adjudication, sorry, egadget.nic.in. egadget.nic.in. Here you can see on the screen, it is clearly shown that this is visible from the screen. Last line, it is effective from the date on which it is published in the e-gadget. So it was published in the e-gadget on 8 September. Therefore, from Monday, 8 September, this is applicable. Fast track merger is applicable. So what has happened in these mergers? Mergers so we are doing since last so many years. Since the Company Act 1956 also we did the mergers, and the amendment came. Then the small company were excluded from the NCLT merger. So what was the problem which was happening? Basically, whenever we were doing the mergers, we have to go to the NCLT or to the RD. There was some differentiation. Only small company we were able to go to the regional director, and in case of regional director, it was very much, we can say, easy to get the merger done within 3.5 months or 4 months. Our merger was completed because the MCA has come with a amendment just before 2 year back. They are within 60 days of the filing of the main petition with the regional director. The regional director has bound to, all India regional director are bound to give the merger order within 60 days. So therefore, now what is happening? We, beside this small company, we were going to the NCLT. In NCLT, we were having problems. Problem means it was taking 4 months, 6 months, 8 months, 12 months, 2 year, 3 year, and lot of problems were there. Now what happened? MCA, many complaint went to the MCA, and also NCLT was not taking much interest in the mergers. They were taking only interest in IBC matters, and therefore, in the IBC matter, they were keeping all the matter of the IBC's daily basis, and merger was only discussed here in our Calcutta bench only on the Friday, and also that at the whims and fancy of the judges. Only whenever the judges were telling, then only the merger were being called, discussed, or the approval was given. Otherwise, straight away they were giving the time for 2 months, 3 months, 5 months. In many cases, though, we have already seen that after 2 years the merger was completed. But here, not that will not happen. Here, what will happen? Here, the merger will go to the regional director office, all India basis,
wherever the regions is there, and as per that it will be completed within a time frame, within a time bound manner. Now we'll discuss the various aspects of the mergers line by line. We'll discuss the various aspects of the mergers. Now I will open my further screens. Applicability. This is applicable. Small company definitions came on 15 September 2022. What were the definitions? Here earlier it was 2 crore 20 crore, then it was changed to 4 crore 40 crore. What is the applicability? This is the applicable for the old scheme. Wherever the merger has been filed before 8 September, in that case old system will be applicable. Two or more startup company, one or more startup company with one or more small company, holding and subsidiary not coming in the earlier scheme, wholly owned subsidiary who has filed MGT 456, only they were covered in the new scheme. Otherwise, sorry, in the old scheme. Otherwise, we have to file the MGT 456. And now in the new scheme, what will happen? That we'll see in the further slides. Here, I want to clarify one thing. In case of wholly owned subsidiary, in case of wholly owned subsidiary, earlier same thing was there. In new system also same thing is there. But we are required to file MGT 456, because if you don't file those things and if you state file the merger, then at the end of the day, when at the time of the approval by the regional director, the merger will be rejected, straight away rejected, because your company is a wholly owned subsidiary. How you can prove that? For proving that, you have to file MGT 456. That is mandatory. Next, what are the new thing which has come here? Which company will be covered? So these things I have noted down in one slide. After that, we'll discuss. I will discuss point by point each of the point, and there are 5 amendments which has come in the FASTag mergers. First of all, we'll discuss regarding the small company, which already I told you in the earlier slide. Again, I will discuss. So I am basically covering what are the 5 points which we have to see. Small company, among unlisted company, the merger has been allowed except Section 8 company, holding company, subsidiary company. Here, we were unable to do this merger. Earlier, what was happening? Earlier, whenever we are going for merger, then in case of holding company, subsidiary company, in case of holding subsidiary company, we were unable to do. We have to go to the NCLT. Means any person is holding 70% share, 65% share, 80% share, or more than 50% share, till 99.99% share. They were filing the merger, but that was being routed through NCLT. But now it post 8 September, if you file any new merger, the people are telling, if I filed any merger before 2 years back, sorry, 2 months back, 3 months back, I myself will file merger on 4 September. That will go in the old scheme. I filed merger on 5th September, 6th September. We are regularly filing the mergers. In the 233 also, 230 also. But everything will go. We have filed 230 merger on 6th September. But what will happen? That will go to the old system. That will not come in the new system. This is totally 200% clear. There is no doubt for that. Therefore, be clear. Whatever the mergers will be filed, means new merger will be filed after post 8 September. That only you can count down in the new scheme. Otherwise, not. Therefore, which companies this will be applicable? Small company, unlisted company, holding company, subsidiary company, one or more subsidiary company of a holding company with one or more subsidiary of the same holding company, or whether transfer company or companies are not listed. Listed should not be there. That is only one of the basic things here. Company should not be listed. Transfer company should not be listed. Transfer or transferee. Merger of the transfer foreign company incorporate outside India, being a holding company with the transferring company, being its wholly owned subsidiary incorporated in India. So these 5 type of companies can be covered under this new scheme. Now, what are the criteria? There are 5 criteria in the new system, effective from 8 September. What are the 5 criteria? First criteria is that old one, small company, 4 crore, 40 crore. Means paid up capital and turnover both should be 4 crore 40 crore. So this is the one criteria. Second criteria is the merger is possible among unlisted company, where every company have aggregate loan, debenture, deposits up to 200 crore and no default in repayment of loan. So there are two condition here. पेमेंट जो लोन का रहेगा उसके अंदर में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट का, कोई रीपेमेंट ऑफ लोन का या इंटरेस्ट का कोई भी चीज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और लोन
should be up to 200 crore। ये 200 करोड़ तक का लोन है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से। नहीं, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं लिखा है, यहाँ क्लियरली लिख दिया है you have to take a certificate from the statutory auditor। You can see the last line, certificate from statutory auditor for above shall be filed in form CA10 along with the approved scheme। Therefore approved scheme means CA11 जब हम लोग फाइल करेंगे तो हम लोग को सर्टिफिकेट कब लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट सर आज लेना पड़ेगा, जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं। सपोज हम आज फाइल कर रहे हैं, आज मेरा तारीख है 26 सितंबर, आज 26 सितंबर मान लो हम 1 अक्टूबर को स्कीम फाइल करने जाते हैं, तो 1 अक्टूबर के 30 दिन के अंदर का एक सर्टिफिकेट चाहिए, नॉट मोर देन 30 डेज। तो 1 अक्टूबर से 30 दिन माने 1 सितंबर से 30 सितंबर के अंदर का हमको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लेना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट में क्या लिख के देगा उसका एक फॉर्मेट नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। एंड दैट सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 30 डेज, मींस उसका डेट 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच का रहेगा। यदि हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का, इफ यू आर फाइलिंग द मर्जर ऑन 1 October, here you can see as on which date, on a day not more than 30 days from the date of the notice in CA9। so if our notice date of CA9 is 1 October, then it should be सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 30 डेज। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये कहाँ लगेगा? ये ऑन द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द स्कीम। फाइलिंग स्कीम कब का? इसमें क्या 3 स्टेज आएंगे, CA9 CA10 CA11, 3 स्कीम में अपने को 3 स्टेज में चलना पड़ेगा। तो अपने एक एक करके स्टेज भी सारे डिस्कशन करेंगे इफ द टाइम परमिट्स। अदरवाइज बेसिक थिंग्स आई एम टेलिंग यू। This is the second criteria. If you are falling under this criteria, then you have to take a certificate from a statutory auditor, not chartered accountant, statutory auditor of the company. Then third criteria, this is the certificate which has to be taken from the chartered accountant, no, from the statutory auditor of the company. And this is a very simple certificate. It is given the certificate that file of the company scheme approved under section 233(1) with the regional directors, Ministry of Corporate Affairs under section 233 subsection 2, meeting the condition referred in rule 25(1)(a) of the company's arrangement rules. This is a very simple certificate, and this will be filed along with the final scheme, which will be submitted with the regional director after 1.5 months. What is the third criteria? This is the third criteria, applicability of the fast track mergers। Here we can see होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी आ गया इसके अंदर में। होल्डिंग सब्सिडरी का एक सिंपल कंसेप्ट आप लीजिए, मेरी होल्डिंग कंपनी है, मैं सब्सिडरी है, सब्सिडरी 75% है, 70% है, 51% है, 52% है, 99% तक। तो 99 के बाद में तो 100 आ जाएगा, 99.99 के बाद में 100 आ जाएगा। यदि आपके 100% है तो MGT4 होल्डिंग ऑन सब्सिडरी पहले भी अलाउ था, अभी भी अलाउ है। लेकिन नया क्राइटेरिया में क्या हुआ? सब्सिडरी को अलाउ कर दिया, पहले सब्सिडरी अलाउ नहीं था। Provided that this clause shall not apply where the transfer company are listed। मतलब लिस्टेड का लिस्टेड कंपनी में मर्ज नहीं होगा। सिंपल सा बात एक ही है, लिस्टेड का अनलिस्टेड में मर्ज हो जाएगा, लिस्टेड का सब्सिडरी में मर्ज हो जाएगा। अनलिस्टेड होना चाहिए लेकिन लिस्टेड नहीं होना चाहिए। लिस्टेड होते ही वहाँ पर ये प्रोविजो एप्लीकेबल हो जाएगा, सेकंड वाला कि प्रोविजो दैट लिस्टेड कंपनी ट्रांसफर कंपनी शुड नॉट बी लिस्टेड। नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया हो गए, 5 क्राइटेरिया टोटल जो नए स्कीम में आई है। चौथा क्राइटेरिया क्या है? one or more subsidiary company of a holding company with one or more subsidiary company of the same holding company or where the transfer company or companies are not listed। मतलब सब्सिडरी में जाएगा, सब्सिडरी का जो सेकंड सब्सिडरी होगा उसमें जाएगा सेकंड लेयर तक। 2 लेयर जो अपने पहले पढ़ते थे सब्सिडरी का, उसी हिसाब से हम 2 लेयर तक दे विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 233। In other way we can say related party transactions, whatever we are doing in case of related party transaction, RPT transaction, wherever the RPT transactions are there, there also now this cluster is applicable। चेन रिएक्शन है पूरा का पूरा, ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से ए में आएगा, ए से डी में जाएगा, डी से ए में जाएगा। इस तरह से वो भी क्लस्टर हो गया पूरा। ए बी सी डी हम जो जहाँ बना के आपको दिखा रहे हैं, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग ऑन सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ बी, सब्सिडरी ऑफ सी, वो आपस में रिवर्स मर्जर भी हो सकता है। किसी भी तरह से मतलब घुमा फिरा के आपका पूरा मर्ज हो जाएगा। ए टू बी कर दो, ए टू सी कर दो, ए टू डी कर दो, किसी भी तरह से सब चीज अलाउ है इसके अंदर। दिस इज द फोर्थ क्राइटेरिया। दिस इज द फिफ्थ क्राइटेरिया, मर्ज ऑफ द ट्रांसफर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का क्या कंसेप्ट है इसके अंदर में? 25A5 विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी आर डिस्कसिंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बीइंग ए होल्डिंग कंपनी विद द ट्रांसफर इंडियन कंपनी। मतलब इंडियन का ट्रांसफर ही कंपनी है और बाहर कोई इनकॉर्पोरेट हो रखी है, उसके साथ में इसका मर्जर कर सकते हैं। बीइंग इट्स होल्ली ऑन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया रेफर टू इन रूल 25A। कलकत्ता के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर कोई मर्ज आपकी रजिस्टर्ड है यहाँ पर कोई फॉरेन कंपनी, एंड दैट इज होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द फॉरेन कंपनी, देन दैट मर्जर इज आल्सो अलाउड।
What is Rule 25A5? You can see on the screen whether transfer of foreign company incorporate outside India being a holding company and the transfer Indian company being a wholly owned subsidiary incorporated in India either into merger or amalgamation. Both the companies shall obtain prior approval of RBI. ये कंडीशन अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, फॉरेन कंपनी के अंदर में ऑटोमेटिकली आरबीआई इज एप्लीकेबल, तो देयरफॉर एज पर आरबीआई यू हैव टू कंप्लाई द आरबीआई फॉर्मेलिटी. सेकंड, इन द ट्रांसफर इंडिया कंपनी शैल कंप्लाई विद सेक्शन 233 मींस वही फास्ट ट्रैक मर्जर का जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करना पड़ेगा. थर्ड, द एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय द ट्रांसफर इंडियन कंपनी, जो इंडियन कंपनी की ट्रांसफर ही है. एक ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर मतलब जिसमें आके मर्ज होगा, तो आपकी यहाँ ट्रांसफर ही कौन है, इंडियन कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे अंडर सेक्शन 233 as per the provision of Rule 25 shall apply to such scheme. Because in case of the foreign company merger, the Rule 25A will be applicable and that has to be complied. Again, fourth condition, a declaration in CA 16 shall be made at the stage of making application under section 233. जब अपने करेंगे उसमें एक डिक्लेरेशन 16 में लग रहा है. पहले क्या लग रहा था, 200 करोड़ वाले के अंदर में डिक्लेरेशन 10A में लग रहा था और कहीं कुछ नहीं है. पहला क्राइटेरिया में क्या था, स्मॉल कंपनी था. सेकंड क्राइटेरिया के अंदर में क्या आएगा, 200 करोड़ वाला कहानी है. 200 करोड़ के अंदर का कोई का भी लोन है, उसमें कोई डिफॉल्ट भी होना चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट देगा, ये 10 के अंदर. थर्ड क्राइटेरिया आ गई, उसके अंदर सब्सिडी को अलाउ कर दिया. फोर्थ क्राइटेरिया आई, उसके अंदर में सब्सिडरी जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी थी उनमें सबको अलाउ किया. फिफ्थ क्राइटेरिया के अंदर में फॉरेन कंपनी को अलाउ कर दिया. स्टेप्स क्या रहेंगे, बेसिकली हम नट सेल में आपको बताने जाएंगे, तो स्टेप्स ये सारे स्टेप्स अपने को कवर करने पड़ेंगे. सबसे पहले अपने को ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा. अब ड्यू डिलिजेंस में क्या करना पड़ेगा, दैट विल डिस्कस. अपॉइंटेड डेट एक फाइनल करनी पड़ेगी. वैल्यूएशन एनालिसिस करना पड़ेगा. वैल्यूएशन एनालिसिस के अंदर अपने वैल्यूएशन पूरा निकालना पड़ेगा पढ़ली, क्या क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. क्योंकि मेन अब अपने को सबसे पहले काम क्या करना है, व्हेनेवर द मर्जर डू कम टू अस, सबसे पहले हम लोग को बैठ करके कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी. अपने बोलेंगे भैया तुम मर्जर करना है तो कम से कम मेरे को पहले बैलेंस शीट ला के दो. बैलेंस शीट कब का, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, यस. ऑडिटेड नहीं हुआ है, अनऑडिटेड बैलेंस शीट, यस वी कैन गो फॉर अनऑडिटेड बैलेंस शीट. अनऑडिटेड बैलेंस शीट से वी कैन फाइल द मर्जर. वंस वी फाइल द मर्जर विद द अनऑडिटेड बैलेंस शीट, देन देयर इज नो इशू, बट देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंशिएशन इन द फिगर्स. अब आपने डिफरेंशिएशन मतलब, अब मान लो आप टर्नओवर दिखा रहे हैं, वहाँ पर पहले टर्नओवर दिखाए हैं आप 15 करोड़ का, अब मर्जर के अंदर अनऑडिटेड बैलेंस शीट से आप मूव कर गए आगे. अब बाद में जब फाइनल बैलेंस शीट बनती है तो उसमें 15 करोड़ की जगह आपका 25 करोड़ का टर्नओवर नहीं हो, या 15 करोड़ की जगह 10% से बेसी वेरिएशन मत हो. 10% तक मिनिमल अलाउड है. एज पर एलओडीआर भी अलाउ है, नॉर्मल वे में भी अलाउ है. तो 10% मतलब 15 करोड़ का 10% कितना, 1.5 करोड़. तो 1.5 करोड़ प्लस माइनस हो सकता है. लेकिन आप बोलेंगे 15 करोड़ का 18 करोड़ दिखाएंगे रेवेन्यू, तो वो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. वैसे खर्चे के अंदर में 10% से बेसी वेरिएशन नहीं होना चाहिए. अनऑडिटेड बैलेंस शीट से वी कैन गो द फॉर मर्जर. अनऑडिटेड बैलेंस शीट हम लोग वैल्यूएशन भी करवाते हैं, वो भी करते हैं, दैट इज आल्सो अलाउड, देयर इज नो इशू इन दैट. तो हियर स्टेप्स क्या क्या है, ड्यू डिलिजेंस करना है, अपॉइंटेड डेट फाइनल करना है, वैल्यूअर फाइनल करना है, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेना है. उसके बाद में अपने CA 9 10 के अंदर में, CA 9 के अंदर में ROC और OL को सबसे पहले अप्लाई करेंगे. तो ये बेसिकली स्टेप्स है. अब मर्जर के स्टेप्स क्या है, क्योंकि एनसीएलटी में मर्जर में क्या स्टेप्स होते थे, एनसीएलटी में मर्जर में हम लोग पहले से ये एप्लीकेशन बनाते थे. वैल्यूएशन उसमें भी सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, वैल्यूएशन बनाते हैं, सारा चीज़ बन गया, स्कीम बनाते हैं. यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन करवाना है, करवा करके आपको वैल्यूअर अपॉइंट करना है, वैल्यूअर अपॉइंट करके उससे डिस्कशन करना है. आप वैल्यूएशन कैसे करवाएंगे वो एक बड़ा एरिया है, क्योंकि वैल्यूअर टाइम ले लेता है, वैल्यूअर 2 महीना खराब कर देता है. तो सबसे पहले अपने को वैल्यूअर को ही देखना है कि वैल्यू किस बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है. हम लोग एक मर्जर करवाए, उसके अंदर हम लोग का वैल्यूएशन आ गया 50 करोड़ का. डी मर्जर था मेरा, डी मर्जर के अंदर में वैल्यूएशन आया 50 करोड़ का. अब 50 करोड़ का यदि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे एक यूनिट से दूसरा यूनिट के अंदर में, तो 50 करोड़ के बदले हमको 50 करोड़ का शेयर अलॉट करना पड़ेगा. सिंपल वे ये है. अब उसमें थोड़ा क्लमजी में जाते हैं, हम क्लमजी में जाएंगे तो 50 करोड़ के बदले के अंदर में हम उसका वैल्यूएशन दोनों का करवाएंगे, एग्जिस्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी. डीमर्ज अंडरटेकिंग जितना भी जा रहा है उसमें, डीमर्ज अंडरटेकिंग मतलब 50 करोड़ का वैल्यू अपने वहाँ पर दे रहे हैं रिजल्टिंग कंपनी के अंदर. तो हम इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू आया मेरा 50 रुपया, उस कंपनी का वैल्यू आ रहा था मेरा 400 रुपया. तो 400 डिवाइड बाई 50, 1:8 का रेशियो रहा था. तो 1:8 का रेशियो मतलब गड़बड़ है. वहाँ एक शेयर के बदले में मेरे को 8 शेयर देना पड़ रहा है. तो कम देना पड़ रहा है तब तो ठीक है, यदि शेयर बेसी देना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो यहाँ 1:8 मतलब क्या हुआ, रिजल्टिंग कंपनी का वैल्यू है 400 रुपया, मेरा कंपनी का वैल्यू है 50 रुपया, तो कम आया ना. तो मेरे को वहाँ पर कम शेयर मिलेंगे, 8 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा मेरे शेयर होल्डर को, तो वो अच्छा चीज़ है. हम लोग 8 से डिवाइड कर दिए 50 करोड़, तो 6 लाख शेयर आया, हमको 6 लाख शेयर खाली अलॉट करना पड़ेगा. दिस इज द अदर वे ऑफ डीमर्जर. तो वैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल है.
नहीं तो क्या होगा, यदि 50 करोड़ के बदले में आप 50 करोड़ का शेयर अलॉट करेंगे तो क्या होगा, 50 करोड़ इंटू गवर्नमेंट का रेट कितना है ऑथराइज कैपिटल के अंदर बढ़ाने का, 75,000 पर करोड़। तो 75,000 इंटू 50 करेंगे तो कितना होगा, 37,50,000 रुपये देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नो बडी विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ मर्जर, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, स्टेट मना कर रही है हमको मर्जर नहीं करना है। तो व्हाट वी शुड डू, हम लोग क्या करना है इसके लिए, हम लोग को यही करना है कि अपने को वैल्यूएशन करना है, सबसे पहले वैल्यूएशन करके डिस्कशन करना है। ऐसा हम लोग के साथ में 2-3 बार हो चुके हैं प्रैक्टिकली, जब भी हम लोग मर्जर किए हैं हम लोग ध्यान दिए नहीं, वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आ गया, लास्ट में जाकर के क्लाइंट को प्रॉब्लम आ गया, क्लाइंट बोला भैया हम इतना पैसा थोड़ी दे दिया, और लास्ट में आउटपुट क्या निकलेगा, या तो आप मर्जर रिजेक्ट करो या मर्जर वापस चेंज कराओ, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मर्जर करना मतलब 3.5-4 महीना लगा। फास्टैग मर्जर का 3.5 से 4 महीना में 100% कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, यस मैंडेटरी है। इस मर्जर में क्या क्राइटेरिया, देखिए कोई क्राइटेरिया मेन है इस टोटल मर्जर के अंदर में, दो चीज बहुत मेन देखना पड़ेगा। क्या, एक आपका जो हम 5 क्राइटेरिया बताए उसमें अपने फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकंड है इसके अंदर में अपने को ये देखना है कि कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं। सॉल्वेंट मीन्स 90% का कंसेंट आपको शेयर होल्डर का मिल रहा है। यदि आपको लग रहा है कि शेयर होल्डर का 90% कंसेंट नहीं मिलेगा, तब यू डोंट गो फॉर दिस मर्जर। 90% ऑफ शेयर होल्डर कंसेंट, 90% ऑफ द क्रेडिटर कंसेंट, दोनों चाहिए आपको। क्रेडिटर मीन्स सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यस टोटल, यस टोटल वैल्यू के अंदर में चाहिए, सिक्योर्ड का अलग, अनसिक्योर्ड का अलग, टोटल वैल्यू में होना चाहिए। अलग अलग लेंगे, एक साथ लेंगे, एक साथ लेंगे हम लोग। टोटल क्रेडिटर का, यदि टोटल क्रेडिटर मान लो 3 करोड़ मेरा अनसिक्योर्ड है, 7 करोड़ यदि सिक्योर्ड क्रेडिटर, टोटल 10 करोड़ का यदि 90% कंसेंट आएगा तो मेरा काम हो जाएगा। और यदि आपको लग रहा है 90% कंसेंट नहीं आएगा, प्रॉब्लम है, तो यू गो फॉर एनसीएलटी मर्जर, तो उसमें टाइम लगेगा आपका, उसमें 8 महीना लगे, 10 महीना लगे, 2 साल लगे, जो लगेगा लगेगा। और उसमें भी कंडीशन है, वहाँ भी तो एनसीएलटी के अंदर में यदि आप कंसेंट आएंगे कितने का, वहाँ पर जितना परसेंट प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट का 75% कंसेंट चाहिए इन केस ऑफ क्रेडिटर। इन केस ऑफ शेयर होल्डर जितना भी प्रेजेंट रहेगा उसका 75% कंसेंट चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, मान लो 10 करोड़ का आपका क्रेडिटर है, वहाँ मैंडेटरी है 75% टोटल ऑफ वैल्यू का लाना ही पड़ेगा, प्रेजेंट का नहीं है। इन केस ऑफ द क्रेडिटर 75% ऑफ द 10 करोड़ का आपको लाना पड़ेगा, प्रेजेंट से मतलब नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ शेयर होल्डर्स जितना प्रेजेंट रहता है उसमें 75% आपका फेवर में वोटिंग कर दिया, योर रेजुलेशन इज पास्ड। इनका एनसीएलटी मर्जर्स। नाउ नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर हैज टू बी डन, मैंडेटरी यहाँ करना पड़ता है। यू हैव टू टेक अ consent from them, yes we have to take a consent from them officially in writing from the क्रेडिटर्स का मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। नो, मीटिंग क्रेडिटर करना मैंडेटरी नहीं है, यदि आपको 90% कंसेंट मिल जाता तो मीटिंग करना मैंडेटरी नहीं है अपने को। और शेयर होल्डर्स में मीटिंग हैज टू बी, आप शॉर्ट टर्म मीटिंग करिए, यदि आपके पास में 95% कंसेंट है शेयर होल्डर का, तो यू कैन गो फॉर शेयर होल्डर्स शॉर्ट टर्म नोटिस मीटिंग एज पर सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट। नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम, यस फाइनली सारा काम होने के बाद के अंदर में हम लोग अप्रूवल ऑफ स्कीम के लिए 11 फाइल करेंगे, किसके पास, आरडी के पास के अंदर। नेक्स्ट, अब हम डिटेल में प्रोसेस एक एक करके आपको बताएंगे एज पर द आवर टाइम परमिट्स। अप्रूवल ऑब्जेक्शन ऑफ द स्कीम आता है, उसके बाद में फिर हम लोग पोस्ट मर्जर कंप्लायंस करेंगे। दिस इज द बेसिक, a glossy picture, a basic we can say groundwork that completes these are the various steps and how we should go start the mergers. Now सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे, इतने भी पॉइंट्स है 230 के अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल अब ड्यू डिलिजेंस क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे ड्यू डिलिजेंस करने का जरूरत क्या है। सर ड्यू डिलिजेंस करने का इसलिए जरूरत है, यदि आप ड्यू डिलिजेंस अभी नहीं करेंगे तब आगे जाकर के यदि मर्जर के अंदर हम लोग को पकड़ता है तो उस केस के अंदर में फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, आपका स्टेट मर्जर रिजेक्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर में मान लो इश्यूज है आपके, कैसे इश्यूज, लोन एडवांसेज का डिटेल आप नहीं दे रखे, ट्रेड रिसेल का डिटेल नहीं देखे, ग्रेचुइटी का प्रोविजन एप्लीकेबल है लेकिन वी हैव नॉट डन द ग्रेचुइटी प्रोविजन, ये सब पॉइंट पकड़े जा सकते हैं। इस हम स्ट्रेट अवे कहेंगे कि ट्रिपल आई के यदि पॉइंट्स है तो पकड़े जाएगा। ट्रिपल आई मीन्स इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के यदि कोई भी पॉइंट वहाँ कवर हो रहा है तो दैट इफ बीइंग कॉट देन यू डू हैव द प्रॉब्लम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मर्जर्स। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अब उसका आप डिटेल नहीं दे रखे हैं, आपका पता चलेगा आपका मेजर टोटल बैलेंस शीट में देखेंगे 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ रुपया आपका बैलेंस शीट का इन्वेस्टमेंट में घुसा हुआ है या लोन में घुसा हुआ है, और लोन एडवांसेज का आप डिटेल ही नहीं दे रहे हैं। जो फॉर्मेट है एज पर शेड्यूल 3 कम से कम उतना तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का कम से कम डिटेल पूरा देना पड़ेगा, कितना कितना इन्वेस्टमेंट है, किस किस इन्वेस्टमेंट है, नाम, नंबर्स, क्वांटिटी, सब चीज़ देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम इज देयर। MGT 456 इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी होली ओन सब्सिडी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यदि होली ओन सब्सिडी तो MGT 45 कौन देगा, जो शेयर होल्डर है वो देगा।
5 जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो देगा, और 6 कंपनी फाइल करेगा। अब ये मैंडेटरी फाइल करना, यस। अब आप बोलेंगे हम कब से देंगे, मेरा तो कंपनी 10 साल से होल्डिंग ऑन सब्सिडी, हम आज तक तो एमटीटी 4, 5, 6 किए नहीं। सर आप जब मर्जर फाइल करने जा रहे हो उसके पहले इसको कर दीजिए। अब यदि आप बोलेंगे हम तो मर्जर फाइल करेंगे 1 अप्रैल 25 से, तो कोई बात नहीं है, 31 मार्च के हिसाब से फाइल कर दीजिए इसको। फिर आज के दिन में 1 अप्रैल से आप अपनी होल्डिंग ऑन सब्सिडी माना जाएगा फिर, या 1 अप्रैल से भी आप कर सकते हैं, 31 मार्च को नहीं करना है तो फिर। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज प्लस प्रॉपर्टी इफ एनी। ये प्रॉपर्टी है कंपनी के अंदर में, तो उसके अंदर भी देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी के अंदर बुक वैल्यू में प्रॉपर्टी करना है। तो यदि प्रॉपर्टी पुरानी है कंपनी के अंदर, प्रॉपर्टी 10 लाख की, आज के दिन में उसका वैल्यूएशन है 4 करोड़ रुपया, तो आप 4 करोड़ के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे तो उसका एक्सचेंज रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू सी प्रॉपर्ली, सो दैट एटलीस्ट वी कैन प्रॉपर्ली कवर द मर्जर्स। बिकॉज आप यदि बुक वैल्यू पे करेंगे तो काम हो जाएगा मेरा, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं रेज करने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रेज होने वाला है। लेकिन दैट डिपेंड्स अगेन ऑन द क्लाइंट टू क्लाइंट। कोई बोलेगा नहीं मेरे को ज़्यादा शेयर देना है, ज़्यादा शेयर अलॉट करना है, इन दैट केस फिर आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। शेयर सिक्योरिटीज वाले के अलावा लैंड एंड बिल्डिंग वाले से भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। वो फिर जो वैल्यूएशन देगा वो 50 लाख का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वैल्यूएशन यदि 8 करोड़ का आएगा तो 8 करोड़ का वैल्यूएशन लेकर के आप यदि वैल्यूएशन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में शेयर का एक्सचेंज रेशियो डिफरेंस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, शेयर होल्डर मीटिंग, यस 90% कंसेंट चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया आपको। ये 2 चीज़ मैंडेटरी है, 90% कंसेंट शेयर होल्डर का, और क्रेडिटर्स 90% कंसेंट। मीटिंग और नो मीटिंग जो भी आप करिए, क्रेडिटर में टोटल क्रेडिटर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिला कर 90% कंसेंट चाहिए मेरे को। मीटिंग करिए चाहे मत करिए, लेकिन कंसेंट लेना ही पड़ेगा। ये पहले से फ्यूचर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा अपने, फिर अपने को ड्राफ्ट स्कीम करना है। नेक्स्ट, ड्यू डिलिजेंस अपने क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे अब। ये ड्यू डिलिजेंस मैं एक एक करके पॉइंट डिस्कस करता हूँ फटाफट एज पर द टाइम परमिट। फॉर अकाउंट्स एंड बोर्ड अप्रूवल, MGT 14 आप फाइल किए कि नहीं किए। अब आप बोलेंगे ये सर कई जगह पकड़ा जा रहा है इसको, स्टेट अवे आई कैन से, इसको कई जगह पार्टी लोग इसको पकड़ रहे हैं, पकड़ के फिर आपका मर्जर अप्रूव नहीं हुआ, रुक जा रहा मर्जर। देयरफॉर अकाउंट अप्रूवल का और इन सब का बोर्ड रजिस्ट्रेशन अपने को फाइल करना ही चाहिए। यदि नहीं किया हुआ 10 साल का 10 साल का फाइल करिए। यदि कंपनी आपका लिमिटेड है तो, प्राइवेट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अकाउंट अप्रूवल का बोर्ड रजिस्ट्रेशन का दोनों का फॉर्म अपने को फाइल करना मैंडेटरी। CFS यदि एप्लीकेबल है तो आप यदि 4 साल से 5 साल से नहीं फाइल किए तो कम से कम करंट का तो करिए, या फिर सबसे अच्छा प्रैक्टिस है आप वहाँ का पता करिए वहाँ लोग क्या सिस्टम में चल रहा है, वहाँ जो रीजनल डायरेक्टर कर रहा है वो क्या ऑब्जेक्शन कर रहा है। मान लो सपोज मुंबई रीजनल डायरेक्टर है, या चेन्नई रीजनल डायरेक्टर है, या कैलकाटा रीजनल डायरेक्टर, जो भी रीजनल डायरेक्टर वो इस पॉइंट को पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, कितना रिलैक्सेशन दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि देयर इज नो SOP गाइडलाइन एज सच। तो SOP गाइडलाइन नहीं है कि इसके बिना वो अप्रूव करेगा या नहीं करेगा स्कीम। CFS नहीं है तो उसके बिना स्कीम अप्रूव कर देगा नहीं कर देगा। बट यूनिवर्सली वी हैव कम अक्रॉस इन मैनी रीजनल डायरेक्टर ऑफिस, they are raising objections. In case of NCLT merger, they are sending the affidavit to the NCLT, and in case of normal 233 merger, they are raising the objection that why you have not complied 233. क्योंकि फिर वो 60 दिन के अंदर में आप नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे, बोलेंगे सोचेंगे समझेंगे बताएंगे, उस केस में फिर आपका मर्जी या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर जो भी रीसबमिशन चला जाएगा। लेकिन एक ब्यूटी और है इस मर्जर के अंदर, यदि रीसबमिशन में डालता है आपका, सपोज आपका 60 दिन खत्म होने के 3 दिन पहले रीसबमिशन में डाल दिया, उसमें कोई लड़ाई चल रहा है आपका कोई मैटर को लेकर के, तो उस केस में आप रीसबमिशन कर देंगे, लेकिन उसमें आपको टाइम वाइम थोड़ा देख के करना पड़ेगा। शुक्रवार को आप शाम को रीसबमिशन करेंगे, शनिवार रविवार को कोई आएगा नहीं, शनिवार को आपका देर में अप्रूव हो जाएगा मर्जर। These are some of the tricks that whenever we work in the system, then we come across and we apply our mind accordingly. Next, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर कोई ड्राफ्टिंग में एरर है तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इन्वेस्टमेंट शेड्यूल प्रॉपर्ली होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, देन ओनली वी शुड गो फॉर मर्जर अहेड, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आर देयर। मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर में हमारा कोई बिजनेस दिखाया हुआ है कि हम लोग जूट का बिजनेस कर रहे हैं या टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं और अपने कंपनी के अंदर इंटरेस्ट इनकम आ रहा है कंटिन्यूसली, तो दैट इज नॉट ए जस्टिफिकेशन। यदि मर्जर करने आएंगे तो समझ लीजिए कि आप पकड़े जा सकते हैं। सीधा साधा कोई कंपनी बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगा हम तो 50 साल में कभी नहीं पकड़ेंगे, आज हम क्यों पकड़ेंगे। सर कब पकड़े जाते हैं आप लोग? अपने पकड़े जब ही जाते हैं जब अपने कुछ काम करने जाते हैं डिपार्टमेंट के पास में। ये चीज़ एक यूनिवर्सल, आज हम चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस करने जा रहे हैं तब हम लोग को पकड़ रहे हैं। ये जो ट्रिपल I का मेरा कंप्लायंस नहीं है, ट्रिपल I मीन्स इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 206, 7, 8, 9, 10। तो जब भी हम लोग कुछ काम एक्टिविटी करने जाते हैं, हम चेंज ऑफ नेम करने जाते हैं मेरे को सिस्टम पकड़ता है, हम मर्जर करने जाते हैं तो MC मेरे को पकड़ता है। MC कुछ नहीं बोलेगा, आप 50 साल से काम कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं मतलब फाइलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चेंज ऑफ नेम कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं रजिस्टर ऑफिस का, आप कन्वर्सन कर रहे हैं पब्लिक टू प्राइवेट, आप LLP कन्वर्सन कर रहे हैं, तब सिस्टम आपको पकड़ेगा, सारा चीज़ देखेगा आप। क्योंकि क्या होता है शिफ्टिंग करेंगे तो आप
कंपनी पूरा का पूरा पुराना सिस्टम चेंज हो जाएगा। मीन्स आप यदि वेस्ट बंगाल से जाएंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका में चला जाएगा, फिर पुराना बैकलॉग पूरा क्लियर होगा तभी सिस्टम अलाउ करेगा। अब तो नया टेक्निकल चीज़ हो गया, सिस्टम में यदि एक भी फॉर्म पेंडिंग है, कुछ भी चीज़ पेंडिंग है, सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा आपको माइग्रेट करने के। सेम चेंज ऑफ नेम में इशू है, सेम कन्वर्सन में इशू है आज का। तो कोई भी आप डिपार्टमेंट में एक्टिविटी करने जाते हैं तभी सिस्टम आपको पकड़ता है। देर फॉर आप मर्जर करने जा रहे हैं आप, तब ये सब आपको पकड़ रहा है, ऐसा पॉइंट देख रहा है आपका। अब आप बोले हम 10 करोड़ रुपया लगा रखे कंपनी के अंदर में, और आपका वहाँ इंटरेस्ट इनकम आता है, लॉस दिखाते कंपनी में 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का। तो अभी ऑफिसर लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि भैया तुम 10 करोड़ लगाए तो 10 करोड़ के बदले में 8%, 5% का इंटरेस्ट आएगा, तो कुछ तो पैसा आएगा घर के अंदर में। तुम्हारे तो कुछ भी नहीं आ रहा, 5% में तो 5 लाख रुपये तो आना चाहिए 10 करोड़ के बदले में, कुछ भी तो नहीं आ रहा तुम्हारा। तुम्हारा तो आ रहा है 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया लॉस। 10 करोड़ का तुम लगाओ बैंक के अंदर में। फिर अब आप बोले हम तो ग्रुप कंपनी में लगा रखे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ से मेरा कोई रिटर्न नहीं है, ये नहीं, तो मतलब जमा खर्ची कर रखे हैं फिर, तो वो अलग एंगल में चला जाता है फिर। तो ये सबको लेके ऑब्जेक्शन हो रहा है। मर्जर में आप जाएंगे तो मर्जर में पकड़ रहा है आपको। मर्जर क्लॉज इन एमओए शैल नॉट एग्जिस्ट इन ऑल कंपनीज। नेक्स्ट है अपना कि मेन ऑब्जेक्ट का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है मर्जर का क्लॉज होना चाहिए हर कंपनी के अंदर में। आप मान लो एक कंपनी में 3 कंपनी मर्ज कर रहे हैं, 4 कंपनी मर्ज कर रहे हैं, तो मेन तो आपको देखना है कि मेन ऑब्जेक्ट सब में होना चाहिए। यदि आपकी एक कंपनी है जो मेन कंपनी है, उसके अंदर मान लो जूट का बिजनेस है, बाकी कंपनी में कोई में टेक्सटाइल का बिजनेस है, एक में लेदर का बिजनेस है, एक के अंदर में आयरन और का बिजनेस है, एक के अंदर में चाय का बिजनेस है, तो ये चारों बिजनेस आपको लाने पड़ेंगे मेन जूट वाली कंपनी के अंदर। अब आप बोलेंगे उसमें तो हम बिजनेस करेंगे नहीं, तो खाली जमा खर्ची करनी है, लेकिन आपको मेन ऑब्जेक्ट में डाला हुआ बिजनेस, तो आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, वहाँ पर MGT 14 फाइल करना पड़ेगा मेन कंपनी के अंदर। सेकेंडली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के अंदर में सबके अंदर में जो भी मर्जर का क्लॉज है, तो मर्जर का क्लॉज सब में रहना चाहिए। मर्जर का क्लॉज कहाँ रहता है, मर्जर का क्लॉज रहता है अपना इनिशियल टू मेन ऑब्जेक्ट में। इनिशियल टू मेन ऑब्जेक्ट के अंदर में मर्जर क्लॉज शुड बी देयर इन ऑल द 4-5 कंपनीज, whether they transfer company or transferee company, because if parity is not there, merger clause is not there, so RD are raising objections, because merger is going to RD finally. Next, MGT 456 already I discussed, I am not again discussing MGT 456। creation of beneficial interest करना ही मैंडेटरी है, ओनली ऑन सब्सिडरी है, क्योंकि हम लोग एक मर्जर फाइल कहते हैं, उसे हम लोग किए नहीं, बाद में पकड़े गए 2 महीना बाद के, तो हम लोग इमीडिएटली बैक डेट में जा करके किए, तो मर्जर उसके बिना होगा ही नहीं आपका। बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी से एग्जिस्ट इन एम ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ये मैंने बोल दिया, डिस्कशन कर लिया मैंने ऑलरेडी। अप टू डेट फाइलिंग ऑफ बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न, यस दिस इज मैंडेटरी। अब हम लोग एक मर्जर अभी किए थे कुछ दिन पहले एनसीएलटी के अंदर, उसके अंदर हम लोग का पकड़ लिया आरडी रीजनल डायरेक्टर, उसके अंदर में क्या पकड़ा कि 2015-16 का बैलेंस शीट ही नहीं फाइल आपका, और कंपनी का टर्नओवर अच्छा खासा था, 200 करोड़ का टर्नओवर था, कंपनी जानबूझ के फाइलिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया था तो वो तो कोई बताएगा नहीं। What we should do, we should try to check as much as we can। तो 8 साल 10 साल का आप बैलेंस शीट चेक करिए, एनुअल रिटर्न बैलेंस शीट फाइल 5 मिनट लगता है चेक करने में। फिर अगेन नाउ नेक्स्ट went to DPT3 NC22, yes these are also one of the documents which should be there, which whether we have filed not filed we have to check। if we filed then probably it is tallying with the balance sheet or not, like DPT3 हमारे केस में एक III का मैटर चल रहा था, उसके अंदर में आईओ बुलाया मेरे को, बोला कि तुम्हारा देखो भैया DPT3 के अंदर में ये आपस में टैली नहीं कर रहा है, तो दैट शुड नॉट हैपन ना। और III ये मेन लाल जो मैंने किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। III यदि पेंडिंग है तब जरा आप नहीं कर सकते हैं एनसीएलटी, एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट III यदि पेंडिंग है तो यू कैन नॉट गो फॉर एनसीएलटी, सॉरी फास्ट ट्रैक मर्जर्स। आप बोलेंगे III क्या है, वही इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 206, 207, 208, 209, 210, 210। इफ एनी ऑफ थिंग इज पेंडिंग, शिफ्टिंग भी नहीं अलाउ होता है, कन्वर्सन में कन्वर्सन तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन शिफ्टिंग नहीं अलाउ कर रहे हैं लोग, III यदि पेंडिंग है। देयरफॉर III का अपने को पहले से ड्यू डिलिजेंस के अंदर में इसको क्लियरली चेक करना पड़ेगा। कुछ रीजनल डायरेक्टर पकड़ रहे हैं 45 आईए का वायलेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर वेल वर्स्ड रिगार्डिंग 45 आईए, तो आई एम नॉट गोइंग इन दैट। वही 50% क्या है, दिस इज द 45 आईए एंड कंपनी फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स considered more than 50% of the gross income। Now next point we'll discuss regarding the appointed date। अभी appointed date बहुत important है, अपॉइंटेड डेट इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटेड डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटेड डेट के अंदर अपने को ये देखना है कि एक स्पेसिफाइड कैलेंडर ईयर के अंदर में आपको स्कीम करना है। सपोज हम आज फाइल कर रहे हैं, हम बोलेंगे 1 अप्रैल 24 का हम आज मर्जर करना चाहते हैं, तो अलाउ है, अलाउ हो सकता है एज पर दिस नोटिफिकेशन। 21 अगस्त 19 का नोटिफिकेशन यदि आप देखेंगे उसके हिसाब से इट इज अलाउड, बट you have to give proper justification। You can see it is written in the notification itself, proper region in the scheme। You can see the last line, can be filed in NCLT within 1 year of appointed date, and if delayed मतलब more than 1 year,
देन प्रॉपर रीजन इन द स्कीम हैज टू बी। द अपॉइंटेड डेट बहुत इफेक्टिव है, और इफेक्टिव डेट अपॉइंटेड डेट आर द सेम डेट, एंड वी शुड गिव अकॉर्डिंगली अपॉइंटेड डेट एंड इफेक्टिव डेट, बिकॉज बिना अपॉइंटेड डेट के स्कीम आगे नहीं बढ़ेगा। और बहुत जन करते हैं कि हम लोग अपॉइंटेड इफेक्टिव डेट से हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द लॉ, बट क्लैरिफिकेशन हैज टू बी गिवन। अपॉइंटेड आप बोलेंगे हम मिड का लेंगे, मिड ऑफ द ईयर लेंगे, सपोज 1 अक्टूबर आप बोलेंगे 1 नवंबर 2025 का हम लेंगे, अपॉइंटेड डेट ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो बार इन दैट। अपॉइंटेड 1 नवंबर का लीजिए, 1 जनवरी 26 का लीजिए, 1 जनवरी 25 का लेंगे, जैसे वो भी ले सकते हैं। अब उस दिन का आप बोलेंगे ऑडिटेड बैलेंस शीट बनेगा, अनऑडिटेड बैलेंस शीट, वो आपको फिर डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अनऑडिटेड भी काम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, फिगर कैसे मर्ज करेगा, इसलिए हम लोग ऑडिटेड ही बनवाते हैं जनरली। या सेकंड वैल्यूएशन, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन अपने को वैल्यूएशन कराना मैंडेटरी है। ये अमेंडमेंट आया था 1 फरवरी 2019 को, तब से अमेंडमेंट चल रहा है, उसके हिसाब से मैंडेटरी कर दिया। मर्जर में जो भी वैल्यूएशन कराएंगे सब रजिस्टर्ड वैल्यूएशन और इक्विटी शेयर्स वाले से होगा, शेयर सिक्योरिटी वाले से। और बाकी जो मर्जर्स है उसके अंदर प्रॉपर्टी है नहीं है, यदि प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यूएशन फिर लैंड एंड बिल्डिंग वाले से करवाना पड़ेगा अपने को, उस हिसाब से मर्जर अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब स्टेप्स क्या क्या है इसके अंदर, बोर्ड मीटिंग के स्टेप्स क्या है, वैल्यूएशन तो अपने करवाना पड़ेगा उन लोगों से, क्योंकि वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है, वाइटल इम्पैक्ट पड़ेगा मर्जर के अंदर में, दैट वी हैव टू सी। नाउ फर्दर बोर्ड मीटिंग करेंगे। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ऑलरेडी विद इन 10 मिनट्स आई शुड कंप्लीट ना भानु जी? Yes, sir. सर By 6. by 6 I have to complete, तो I will go a little bit fast। हम बेसिकली फटाफट सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं जिससे कि मेरा मर्जर कंप्लीट हो जाए पूरा, जी जी अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, तो और 1 घंटा लग जाएगा। तो आई विल कंप्लीट विद इन 10 मिनट्स। बोर्ड मीटिंग Okay. फटाफट करेंगे। बोर्ड मीटिंग में हम लोग CA9 सबसे पहले अप्रूव करेंगे, उसके अंदर सॉल्वेंसी का जो सर्टिफिकेट रहेगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, वो भी रखेंगे, रख करके उसको अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। जैसे ही वो अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद के अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूव होने के बाद में अप्रूव स्टेटमेंट एंड एसेट लायबिलिटी रिसेंट नियर टू बोर्ड मीटिंग डेट अप्रूव करके इमीडिएटली हम लोग CA9 फाइल कर देंगे। CA9 फाइल करेंगे और साथ साथ में हम लोग को एक GNL1 बोल के फॉर्म है, वो भी फाइल करना पड़ेगा। तो CA9 में हमको क्या क्या लगाना है, 30 दिन में लगाना है, 30 दिन में फाइल करना है। इसमें CA9 मीन्स ये किसको किसको फाइल होगा, ये ROC को फाइल होगा और OL को फाइल होगा। यू कैन सी इन द स्लाइड आई एम गिविंग, नोटिस टू OL एंड ROC CA9। अब CA9 से अपना अटैचमेंट क्या जाएगा, ये एक फॉर्मेट है CA9 का, स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में जाएगा। इसमें कॉपी ऑफ स्कीम लगाना है और रजिस्ट्रार को जाएगा और OL को जाएगा। इसमें अटैचमेंट क्या रहेगा, कॉपी ऑफ स्कीम रहेगा, प्लस हम लोग बोर्ड डिसीजन का कॉपी लगाते हैं, प्लस वैल्यूएशन लगा सकते नहीं लगा सकते मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्कीम और बोर्ड डिसीजन 2 चीज लगाना मैंडेटरी। फॉर्म कौन सा फाइल करना है, फॉर्म आपको फाइल करना है CA9, GNL1 के अंदर फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। अब GNL1 के अंदर में फीस ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से जो भी लगेगी लगेगा। क्यों फाइल कर रहे हैं हम लोग, ड्यू टू दिस रीजन, हम लोग को इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ROC एंड OL। ROC एंड OL से हमको कुछ भी ऑब्जेक्शन लेना है, यदि कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहे तो उसके लिए हम लोग को उनको फाइल करना है। कंपनी को किसी को नहीं जा रहा है, शेयर होल्डर को किसी को नहीं दे रहा है, किसी को भी नहीं जा रहा है, हम लोग खाली OL को और ROC को फाइल कर रहे हैं। कि कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए। नेक्स्ट स्टेज क्या है, हम लोग इमीडिएट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है। जैसे CA9 का टाइम चलता है, कोई बोलता है हम CA9 के 5 दिन बाद में भी कर देंगे तो कर सकते हैं। CA9 सपोज हम फाइल किए 1 अक्टूबर को, तो आप 5 अक्टूबर का 10 अक्टूबर को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग वेट भी करते हैं, 30 दिन खत्म होने के बाद में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल कर सकते हैं, या हम लोग हाथों हाथ भी कर सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। और अदरवाइज अब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करने की कंपनी सॉल्वेंट है, स्कीम अप्रूव्ड होगा मेजॉरिटी शेयर होल्डर से, रिपेयरिंग 9/10 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, या नोटिस देंगे अपने 21 दिन का, और अदरवाइज अप्रूव्ड इन राइटिंग। उसके बाद हम लोग फाइल करेंगे CA10। CA10 को किस में फाइल करेंगे, अब मैंडेटरी है, इसमें अमेंडमेंट आ गया, पहले हम लोग GNL2 में करते थे, अभी GNL2 में नहीं है, अभी ये GNL ने मैंडेटरी कर दिया। CA10 प्लस उसके जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट क्या क्या है CA10 के अंदर में, विल डिस्कस दीज आर द अटैचमेंट व्हिच विल कम इन द CA10। ये अटैचमेंट है, कॉपी ऑफ बोर्ड डिसीजन लगाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी। अब बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी एज ऑन विच डेट, जिस दिन बोर्ड मीटिंग की उस दिन का डेट का ले लीजिए। और ऑडिटर रिपोर्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ द, अब यहाँ एक कहानी आ रहा है, इसमें ऑडिटर रिपोर्ट लगाना मैंडेटरी हो जा रहा है। अब किस दिन का देंगे आप, हम लोग कई बार, अभी हम मान लो मिड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, बीच के अंदर, तो हम किस दिन का देंगे ऑडिटर रिपोर्ट, हम सर 31 मार्च का लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का ऑडिटर रिपोर्ट लगा देंगे। कुछ रेगुलेटर्स बोलते हैं नहीं नहीं, आप बैलेंस शीट मान लो अप्रूव किए हैं 1 सितंबर को, 1 सितंबर का लगाइए,
ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई हॉट एंड फास्ट लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो अपना अपना डिस्क्रिप्शन होगा। आप 31 मार्च 2025 का लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का भी ऑडिटर रिपोर्ट लगा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी अनऑडिटेड आज के दिन का लगाएंगे, कॉपी ऑफ बोर्ड लिस्ट लगाएंगे, लगा के आप डिक्लेरेशन ऑफ करनी है सबमिट फाइल करनी है। अब इसमें एक ब्यूटी क्या है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के अंदर में, ये देखिए डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का जो फॉर्मेट है, ये रेक्चर फॉर्मेट, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, लाल जो रंग है ये एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पर आपको फिगर में इस तरह से लाना है कि पॉजिटिव होना चाहिए, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, पॉजिटिव फिगर शुड बी देयर। यदि आपका 5 करोड़ का असेट्स है, लायबिलिटी 3 करोड़ का, तो 2 करोड़ का पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव है तो आप चेंज कर सकते हैं, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है, इसको आप एक्चुअल फिगर डाल दीजिए यहाँ पर, इसका कोई इम्पैक्ट वैल्यूएशन में नहीं आएगा, कोई इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं आएगा। बाकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसका एक्चुअल वैल्यू डाल सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू डाल सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड का मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एक फिगर्स आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यदि दिया हुआ है, जो पहले मैंने बताया मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल्स, उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट का फिगर भी आता है, इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी। जो इन्वेस्टमेंट यदि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, कोटेड इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ कोटिंग का फिगर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, टोटल जितना भी असेट्स है माइनस लायबिलिटी, ये लायबिलिटी के जो फिगर्स है, इसमें लायबिलिटी के अंदर में आप एस्टिमेटेड वैल्यू मत डालिए, बुक वैल्यू डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, विच शुड बी पॉजिटिव फिगर, जो लास्ट में है ना, टोटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ असेट्स टोटल लायबिलिटी, एस्टिमेट सरप्लस आफ्टर पेइंग द डेब्ट इन फुल, तो सरप्लस होना चाहिए। यदि नेगेटिव होगा तो आपका कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, यू कैन नॉट गो फॉर दिस मर्जर। ये एक्सरसाइज एकदम स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, कंपनी सॉल्वेंट होना। तो एक्सरसाइज अपने को स्टार्टिंग में क्या क्या करना है, कंपनी सॉल्वेंट देखना है, सेकंड थिंग वैल्यूएशन प्रॉपर्ली करवाना है, तीसरा ड्यू डिलिजेंस करना है, प्रॉपर्ली सारा चीज देखना है, बैलेंस शीट देखना है, अपॉइंटेड डेट देखना है, फिर अपने को मर्जर स्टार्ट करना है। फाइनल स्टेज जिस दिन शेयर होल्डिंग होगी, सपोज मैंने 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक वेट किया, आरडी आरओसी का ओवल का कोई कॉम्पिटिशन नहीं आया, उसका 10 दिन के अंदर में, अक्टूबर के बाद नवंबर में 10 नवंबर 15 नवंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने सारा काम कर लिया। क्या काम कर लिया, एडिटर का एनओसी ले लिया, शेयर होल्डर का मीटिंग दिखा दिया 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद में इमीडिएटली 15 दिन में, 15 नवंबर को यदि मेरे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है तो 15 दिन में मेरे को सीए 11 फाइल करना मैंडेटरी। पहले ये 7 दिन था, अभी ये 15 दिन हो गया 8 सितंबर से। तो 15 नवंबर को मेरी सारा काम कंप्लीट हो गया, शेयर होल्डर का अप्रूवल आ गया, क्रेडिटर का अप्रूवल आ गया, सीए 9 पहले हम फाइल कर ही देते 1 अक्टूबर को, तो 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 30 नवंबर को हमको सीए 11 फाइल करना ही है। सीएनएल कैसे जाएगा, आरडी 1 में जाएगा। आप ऑनलाइन फाइल कर दिए, उसके बाद हार्ड कॉपी बाद में सबमिट कर दिए, चलेगा। कौन सी कंपनी फाइल करेगी भाई, विच कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, यस ओनली ट्रांसफरी कंपनी शुड फाइल। सारी कंपनी को नहीं करना है, यदि एक कंपनी में 4 कंपनी मर्ज है तो चारों को नहीं करना है, लेकिन सीए 9 और 10 सबको करना है। सीए 9 चारों कंपनी करेगी, सीए 10 चारों कंपनी करेगी, सीए 11 खाली एक कंपनी करेगी, आरडी 1। क्या फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सीए 11। इसमें सिन नंबर है, नाम है, डिटेल है पूरा, इसमें ये सब कई चीज़ ऐड हो गया नया, ट्रांसफर कंपनी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडी, जो नया अभी अमेंडमेंट है उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स ऐड हो गए। अब एक और नया अमेंडमेंट आ गया यहाँ पर कि आप डीमर्जर भी कर सकते हैं, डीमर्जर का भी अलाउ दे दिया यहाँ पर। ये देखिए इसमें लिख रहा है स्कीम इज फॉर मर्जर और ट्रांसफर और डिवीजन ऑफ अंडरटेकिंग, पहले नहीं लिखा हुआ था, अब मैंडेटरी या कॉलम डाल दिया सी 11 के अंदर। तो दिस मीन्स मर्जर इज अलाउड, नो अलॉन्ग विद दैट मर्जर डीमर्जर इज आल्सो अलाउड इन द फास्ट ट्रैक मर्जर। C11 कंप्लीट हो गया, C11 के साथ में क्या क्या पेपर लगाना पड़ेगा, सारे पेपर लग जाएंगे इसके साथ में, कुछ भी पेपर बाकी नहीं रहेगा, जितने भी अप्रूवल लिए हैं, जितने भी सब कुछ लिए हैं। अब देखिए एक ये पॉइंट नया डाला है यहाँ पर, लाल रंग का मेरा किया हुआ है, लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 233(9), दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी शुड कीप इन माइंड। एंड अगेंस्ट द ट्रांसफर कंपनी इफ एनीथिंग इज पेंडिंग तो दैट विल कैरी ऑन विद द ट्रांसफर कंपनी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ट्रांसफर कंपनी यदि कोई पेंडिंग है तो ट्रांसफर कंपनी है। सपोज इनकम टैक्स का कोई डिमांड नोटिस आ गया, इनकम टैक्स का कोई केस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, और कोई लीगल केस चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर में अगेंस्ट यानी ट्रांसफर कंपनी, तो दैट विल गो विद द ट्रांसफर कंपनी एज पर द स्कीम। इसमें अटैचमेंट क्या जाएंगे, सारे स्कीम्स के अप्रूवल जाएंगे, सारे क्रेडिटर के अप्रूवल, मेंबर के अप्रूवल, जितनी नोटिस हमने भेजी है, प्लस जितने भी अटैचमेंट है सारे अटैचमेंट यहाँ सबमिट करेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है आरडीआरओसी का तो ठीक है, अदरवाइज ये लोग अप्रूवल देते हैं तो सीए 10 में अप्रूवल देंगे, 30 डेज के अंदर में हमको NC-28 फाइल करना पड़ेगा। फाइल करने के बाद के अंदर में कंप्लीट मर्जर, यस मेरा मर्जर कंप्लीट नहीं, इसके बाद हमको कैपिटल बढ़ाना पड़ता है। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम हो गया, कंफर्मेशन ऑर्डर मिल गया मेरे को, कंफर्मेशन ऑर्डर मिलने के बाद में हम NC-28 फाइल कर देंगे, NC-28 फाइल करके हम लोग सबको इंटीमेट कर देंगे, जितने भी क्लाइंट्स है और है, जो भी ट्रांसफर कंपनी के अंदर में कोई एक्चुअल क्लाइंट्स है और है। अब इसके क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग के पास के अंदर में, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी,
एक है ये ऑथराइज कैपिटल का। तो यू काइंडली सी दिस थिंग। ऑथराइज कैपिटल में क्या होता है, मेरी सपोज ट्रांसफर ही कंपनी के अंदर में 1 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है, और बाकी जो ट्रांसफर कंपनी है उसके अंदर में चारों कंपनी का मिला के 4 करोड़ होगा। तो 1++4 करोड़ 5 करोड़, तो 5 करोड़ का मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो क्या होगा, 4 करोड़ की जो कैपिटल लगी हुई है, आज के दिन में 4 करोड़ की फीस कितनी आ रही है, 4 करोड़ जो मर्ज हो रही है मेरी ऑथराइज कैपिटल ट्रांसफर कंपनी की, 4 करोड़ का फीस आ रहा है 75,000 से 3 लाख रुपया। और 3 लाख के बदले में हम लोग मानो पेमेंट किया है 1,20,000 रुपया। तो 3 लाख माइनस 1,20,000, 1,80,000 मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, तब मेरे ऑथराइज कैपिटल का मेरे को बेनिफिट मिलेगा। बहुत जन क्या करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, फॉर्म 28 फाइल कर देंगे, तो 28 अप्रूव नहीं होगा फिर आपका, पहला चीज। दूसरा चीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी की, ट्रांसफर कंपनी के नाम में कोई मान लो प्रॉपर्टी एक फ्लैट है या कोई भी है, अब वो हमको ट्रांसफर कंपनी के नाम में जब मर्जर करते हैं, सर उसका रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। बहुत जन क्या करते नहीं है, बोलते तो घर में ही पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है करवाने का। आजकल शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन करना पड़ता है किसके नाम में प्रॉपर्टी है, क्या है, नहीं है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी का बहुत ईजी काम है, अच्छी फीस भी मिलती है इसके अंदर में। स्टैम्प ड्यूटी जो भी अप्लीकेबल है अपने वेस्ट बंगाल के अंदर में 2% प्लस 1.2% है, 3.2% है ऑन द मार्केट वैल्यू। डीड ऑफ कन्वेंस बनाइए, ऑनलाइन पेमेंट करवाइए, फटाफट उसका कन्वेंसिंग करवा दीजिए, कन्वेंसिंग करवा दी काम हो जाता है इसके अंदर, ज़्यादा कोई काम भी नहीं है। तो दिस कंप्लीट माई सबमिशन इन रिगार्डिंग टू मर्जर। नाउ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबडी? Thank you, sir. Very nice deliberation. Thank you, sir. Each and every points covered in well mannered. And I think no question in our chat box. No, we have no question. Yeah. So over to Mangji. So, everyone, if you have any question, you can drop in the chat. Uh, Thank you, sir. Thank you, everyone, for being such an outstanding audience. On behalf of the EIRP ICI, I sincerely thank our distinguished guest, CS Mohanram Goenka for imparting valuable insights on fast-track merger and engaging us with the practical as well as clear explanation. And I will also thank to C.A. Chandrabhanu Sinha ji for giving us the insights over the fast-track merger. Thank you for all the participants for making this event a great one. We eagerly look forward to welcoming you again in the Golden Charcha session. See you soon. Till then, bye. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you.